Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Respiration in Plants and Animals. Introduction. Two most important prerequisites of life are continuous supply of materials for growth of the body and energy for carrying out various life processes. All systems from the cell to the ecosystem require energy to work. As you have studied earlier, light energy is converted into chemical energy by plants during photosynthesis, and this energy is then stored in the bands of complex molecules such as glucose, starch, etc. It is these complex molecules which are given the name food. However, energy in the food has to be made available to the cells in a usable form. This is the role of respiration. Like plants, you can also breathe in or out. Place your hand on your chest. You can feel the chest moving up and down due to breathing. How do we breathe? Read this chapter to know about the mechanism of breathing. अच्छा देखिए, दो इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स लाइफ के क्या है. एक तो कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए मटेरियल्स के लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. तो जितने भी आपके जो सिस्टम्स है, सेल से लेके इकोसिस्टम तक, हर किसी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए. एंड जैसे आप पढ़ चुके हैं कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाती है बाय प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान, और फिर इस एनर्जी को स्टोर कर देते हैं बैंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका ग्लूकोज है, स्टार्च है, और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं इनको नाम दिया गया है फूड. अब ये जो एनर्जी जो फूड में है वो इस तरह से बना हैज़ टू बी मेड अवेलेबल टू द सेल्स, मतलब एक यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए. तो ये रोल है रेस्पिरेशन का. इस चैप्टर में हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे. 7.1 रेस्पिरेशन. We have already studied that digested food is assimilated into our body and is used as fuel to get energy and for growth and repair of our body. We will now read how energy is released from the food which is absorbed and assimilated in the cells of our body. Most living things need oxygen to obtain energy from the food they eat and the external environment. The plants obtain oxygen from the environment and return carbon dioxide and water vapor to it. The process of getting oxygen into the body and using it for releasing energy, ATP, by burning the food and removing carbon dioxide and water vapor from the body is known as respiration. It involves exchange of gases between the organs and the external environment. The process of respiration can be expressed in the form of a word equation as follows. Food plus oxygen equals carbon dioxide plus water plus energy, ATP. देखिए, आपने पहले ही पढ़ा है कि जो फूड है आपका एसिमिलेट हो जाता है हमारी बॉडी में और फिर एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है टू गेट एनर्जी, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए. अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एनर्जी रिलीज़ होती है फ्रॉम द फूड, जो कि एब्जॉर्ब होता है एंड देन एसिमिलेट हो जाता है बॉडी के सेल्स में. तो मोस्ट लिविंग थिंग्स जो है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना. और उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत किस लिए? एक तो ब्रीथ तो करते हैं या उसके लिए तो चाहिए, बट टू ऑब्टेन एनर्जी ऑल्सो फ्रॉम द फूड जो वो खाते हैं. तो जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं इन्वायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करते हैं, वाटर वेपर को रिटर्न करते हैं. तो जो ये प्रोसेस है ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी और फिर उसको यूज़ करना फॉर रिलीजिंग एनर्जी और ATP कैसे होता है? बाय बर्निंग द फूड एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द बॉडी, जिसे कहा जाता है रेस्पिरेशन. सो हियर इज द इक्वेशन. ये जो आपका प्रोसेस है ना रेस्पिरेशन का, respiration is essential for life because it provides energy for carrying out all the life processes which are necessary to keep the organism alive. It is a mechanism of breathing by an organism obtain oxygen from the air and releases carbon dioxide. This mere exchange of gases is known as external respiration or breathing. Respiration बहुत important है ना, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एनर्जी की हेल्प से होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अलाइव रहता है. तो ये जो मैकेनिज्म है ऑफ ब्रीदिंग बाय एन ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है एयर से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, तो जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग. 7.2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. We have studied that respiration takes place in the presence of oxygen or air
Sometimes respiration takes place in the absence of oxygen, air, though it is very rare. As such, burning of food to obtain energy can take place in the presence of oxygen as well as in the absence of oxygen. Accordingly, respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. अच्छा देखिए, हमने पढ़ा है कि जो रेस्पिरेशन है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, बट आपको मालूम है कई बार रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, हालांकि बहुत रेयर होता है. सो रेस्पिरेशन आपके दो तरह के हैं. वन इज एरोबिक एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration. Aerobic means with air. The respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. In such respiration, the food in the form of glucose is completely broken down into carbon dioxide and water by oxidation. Aerobic respiration produces a considerable amount of energy which is stored as ATP molecules. Aerobic respiration जो है आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. और ऐसी रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड होता है ना ग्लूकोज की फॉर्म में, वो कम्प्लीटली आपका ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में बाय ऑक्सीडेशन. तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है जो आपकी स्टोर्ड होती है एज एटीपी मॉलिक्यूल्स. एक्टिविटी 1, पर्पस टू डिमॉन्स्ट्रेट एरोबिक रेस्पिरेशन. मटीरियल्स: रेस्पिरोस्कोप, beaker containing water, some germinating seeds, small pieces of potassium hydroxide stick, cotton wool. ओके, तो हमें क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना है? एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसके लिए आपको इन सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हो. प्रोसीजर नंबर 1, फिक्स द रेस्पिरोस्कोप vertically so that its vertical tube is dipped in a beaker containing water. Number 2, introduce some germinating seeds into the respiroscope. Number 3, cut off the air enclosed in the flask from the surrounding atmosphere. Number 4, introduce a small piece of potassium hydroxide stick into the respiroscope, preventing its fall with loosely held cotton wool. Number 5, leave the respiroscope undisturbed for 24 hours. देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो रेस्पिरोस्कोप है उसको आपने फिक्स करना है वर्टिकली, ताकि जो वर्टिकल ट्यूब है ना वो आपकी डिप हो सके बीकर में जिसमें आपका वाटर है. अब आपने क्या करना है, आपने कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स को रखना है उस रेस्पिरोस्कोप में. अब आपने कट ऑफ कर देना एयर जो आपके फ्लास्क में इनक्लोज है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से. ओके, आपने स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टिक आपने डालना है रेस्पिरोस्कोप में, लेकिन वो गिरना नहीं चाहिए, इस तरह से उसको फिक्स कर देना है लूजली हेल्ड कॉटन वूल के साथ. फिर आपने रेस्पिरोस्कोप को 24 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ना है. कॉशन: यूज़ फॉर्सेप्स टू इंट्रोड्यूस द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टिक इनटू द रेस्पिरोस्कोप. आपको क्या करना है, फॉर्सेप्स का यूज़ करना है जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टिक को इंट्रोड्यूस करेंगे. राइट. Observation: the level of water in the respiroscope has risen to the extent of nearly 1/5 of its volume. आप क्या देखेंगे, जो वाटर का लेवल है ना उसमें वो राइज हो जाता है. ओके, nearly 1/5 of its volume. Inference: the rise in the level of water in the respiroscope is due to absorption of gas exhaled by the germinating seeds. As potassium hydroxide absorbs carbon dioxide, it can be inferred that carbon dioxide is released by the germinating seeds during respiration. अब वो जो लेवल ऑफ वाटर का राइज हुआ है ना वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है गैस का जो जर्मिनेटिंग सीड्स ने एक्सहेल किया. अब जर्मिनेटिंग सीड कौन सी गैस एक्सहेल करेंगे, ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. रिमेंबर दैट, है ना. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड किसने रिलीज की थी, जर्मिनेटिंग सीड से रेस्पिरेशन के टाइम. बी, एनारोबिक रेस्पिरेशन. लिटरली एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर. The respiration which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Microscopic organisms like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration. Here, the microorganisms break down food into ethyl alcohol and carbon dioxide and release energy. This process is also known as fermentation. अब anaerobic respiration आपका होता है without oxygen, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में. अच्छा, जैसे आपके कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे यीस्ट की बात करें या कुछ बैक्टीरिया, वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से. तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो
ग्लूकोज को यानी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। एक्टिविटी 2, पर्पस टू डेमोन्स्ट्रेट एनारोबिक रेस्पिरेशन। मटीरियल्स, टेस्ट ट्यूब, ऑयल, ट्रफ, ग्लूकोज सोल्यूशन, यीस्ट। अब हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके लिए आपको इन सारे मटीरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। टेक अ टेस्ट ट्यूब, fill it with glucose solution and add yeast to it. Pour oil in the test tube so that the thin layer of oil on the top of the solution prevents contact with air. The no oxygen gets dissolved. Now insert a thin glass tube bent twice at right angles in the test tube through the rubber stopper. Make the other end of the tube dip in the beaker containing lime water. Keep the test tube in a beaker containing warm water. Leave the setup undisturbed for some time. After some time, you will see that lime water in the beaker turns milky. This happens because yeast performs anaerobic respiration in the absence of oxygen and releases carbon dioxide. आपने सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें ग्लूकोज सोल्यूशन डालना है, फिर यीस्ट को ऐड करना है, ऑयल डालना है टेस्ट ट्यूब में, जिससे कि जो लेयर होगी ना ऑयल की वो टॉप आ जाएगी सोल्यूशन में, जिससे कि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी। इसका मतलब कोई ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, राइट। अब आपने पतली सी ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करना है, उसको पहले बेंड करना है राइट एंगल पे और फिर उसको इंसर्ट करना है टेस्ट ट्यूब में रबर स्टॉपर के थ्रू। फिर आपने जो दूसरा एंड है ट्यूब का वो डिप करना है बीकर जिसमें आपका लाइम वाटर हो, ओके, मतलब कि इस वाले बीकर में इसमें आपका लाइम वाटर है, ओके। नाउ अब आपने टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखना है जिसमें आपका वार्म वाटर हो, इस बीकर में आपका वार्म वाटर है, राइट। फिर आपने सेटअप को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ना है। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे जो लाइम वाटर है ना बीकर में, दिस लाइम वाटर ये आपका मिल्की हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो यीस्ट है उन्होंने एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिकॉज ऑक्सीजन तो था ही नहीं, हमने यहाँ पे ऑयल डाला हुआ था, है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। 7.3 differences between aerobic and anaerobic respiration. Though the work of both types of respiration is to produce energy by breaking down the food, yet they have some differences which are tabulated below. चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हालांकि दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। लेट्स चेक आउट। Number 1, aerobic respiration. It takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration, it takes place in the absence of oxygen. Aerobic respiration, glucose is completely broken down. Anaerobic respiration, glucose is partially broken down. Aerobic respiration, carbon dioxide and water are the end products. Anaerobic respiration, ethyl alcohol and lactic acid are the end products. Aerobic respiration, it produces a considerable amount of energy, 38 ATP. Anaerobic respiration, it produces a less amount of energy, 2 ATP. देखिए पहला डिफरेंस तो आपको पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है जबकि एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है जबकि एनारोबिक में वो पार्शली ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि एनारोबिक में आपके होते हैं इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, ये आपके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है विच इज़ 38 ATP, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत थोड़ी सी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है विच इज़ 2 ATP. 7.4 respiration in plants. Plants need oxygen for the oxidation of glucose to release energy. This energy is used for carrying out different life processes. So the process of respiration also occurs in plants. Plants do not have a breathing system, but exchange of gases take place in plants. अच्छा देखिए, प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, जिससे कि एनर्जी रिलीज हो जाए, ओके। और ये जो रेस्पिरेशन का, इसका मतलब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स की ब्रीदिंग सिस्टम नहीं होते हैं, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो आपका होता है स्टोमेटा के थ्रू। Exchange of gases in plants mainly takes place through stomata present on the leaves, stem and sometimes through the roots. Stomata are pores on the surface of a leaf.
Each stoma is surrounded by two bean-shaped guard cells. The guard cells help in the opening and closing of the stomata. Carbon dioxide is also taken in through the stomata for the process of photosynthesis. Oxygen from the stomata reaches the cells where it is used for oxidizing the food and releasing energy. तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के ब्रीदिंग सिस्टम नहीं होते, बट गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो होता है आपके स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आपकी लीव्स के सरफेस पे होते हैं, कई बार स्टेम में होता है और कई बार रूट्स के थ्रू भी ये रेस्पायर करते हैं. ओके, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है. इसमें स्टोमेटा जो होता है सिंगुलस का होता है स्टोमेटा, और हर स्टोमा जो है दो बीन शेप्ड गार्ड सेल से आपके सराउंडेड होता है. जो गार्ड सेल्स होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है स्टोमेटा की. कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है स्टोमेटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. जो ऑक्सीजन होता है ना स्टोमा से वो सेल्स तक पहुंचता है जहाँ पे इसको फूड की ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है, देन एनर्जी रिलीज होती है. द स्टेम एंड फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स हैव माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिकल्स which help in the exchange of gases. In the roots, the root hairs take up the oxygen which is present in between the soil particles. That is why gardeners loosen the soil from time to time. This oxygen that enters the roots, similarly, carbon dioxide moves out through the root hairs into the soil. In aquatic plants, oxygen dissolved in water diffuses into the plants through the leaves, stem and roots. Seeds and plants also respire. अच्छा देखिए, जो स्टेम्स या फ्रूट्स होते हैं ना कुछ प्लांट्स के, उनमें माइन्यूट ओपनिंग्स होती है जिन्हें कहते हैं लेंटिकल्स, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी कि जो स्टोमेटा का काम करते हैं. तो रूट्स में जो रूट हेयर्स होती हैं वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं जो कि आपके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है. तो इसीलिए क्या होता है, गार्डनर्स को आपने देखा होगा सॉइल को ना टाइम टू टाइम लूजन करते हैं. फिर ये जो ऑक्सीजन है ये रूट्स में एंटर करती है. इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रूट्स से आपके मूव आउट हो जाती है सॉइल में. एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, जो वाटर में आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना, तो ये डिफ्यूज़ हो जाता है प्लांट्स में लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू या रीड्स के थ्रू. एंड जो सीड्स होती हैं प्लांट्स की वो भी रिस्पायर करती हैं. एक्टिविटी 3, टू शो दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा. Method: take a potted plant and select 2 leaves and coat them with petroleum jelly on the undersurface. Expose the plant to sunlight. You will observe the leaves die because air cannot enter the leaves. देखो, आपको ये शो करना है कि प्लांट जो हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू. तो आपने क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है, 2 लीव्स को सिलेक्ट कर लीजिए. अब उनको पेट्रोलियम जेली से, जिसे आप वेस्लीन कहते हैं, उससे कोट कर लेंगे अंडर सरफेस पे, लीफ के अंडर सरफेस पे. फिर आप उसे सनलाइट पे रख दीजिए प्लांट को. आप देखेंगे जो लीव्स है ना दे विल डाई, क्योंकि एयर लीव्स में एंटर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया. स्टोमेटा की जो ओपनिंग्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे पोर्स हैं, हमने उन्हें क्लोज कर दिया. राइट. 7.5 Respiration in animals. Different animals have different mechanism for exchange of gases, such as fishes have gills and insects have spiracles. Some animals like hydra and earthworm breathe through their skin. Let's discuss a few of them which are typical ones. अब डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट मैकेनिज्म होता है गैसेस की एक्सचेंज के लिए. जैसे फिश आपको पता है गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, है ना. इंसेक्ट के स्पाइरिकल्स होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे हाइड्रा या अर्थवर्म वो अपने स्किन के थ्रू करते हैं. तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा. Amoeba is a single-celled animal and lives in water. It depends on simple diffusion of gases for breathing. To supply itself with energy, amoeba requires oxygen as well as food. Oxygen passes from the watery environment into amoeba through the cell membrane. At the same time, waste products like as carbon dioxide pass out through the cell membrane. Excess water is pumped out through the cell membrane by a कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अमीबा आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये वाटर में रहता है. ये आपके डिपेंड करता है सिंपल डिफ्यूजन जो गैसेस का होता है ब्रीदिंग के लिए. तो अपने आप को एनर्जी सप्लाई करने के लिए अमीबा को ऑक्सीजन और फूड दोनों की ज़रूरत होती है. राइट. ऑक्सीजन जो है ये पास करता है वाटर एनवायरनमेंट से अमीबा में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. सेम टाइम पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास आउट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो एक्सेस वाटर होता है वो पम्प्ड आउट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म. Earthworms live in soil. In its respiratory system, oxygen enters through the skin.
The earthworm produces carbon dioxide gas which leads through the animal's skin. However, the skin must remain moist for gases to pass through. If the earthworm remains out in the heat of the sun, the skin dries out and the animal is suffocated. earthworm आपको पता है सॉइल में रहता है ना, और ये अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. तो earthworm जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है जो उसकी स्किन के थ्रू ही बाहर निकलती है. हालांकि जो स्किन है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए जिससे कि गैसेस जो है वो पास हो सके. अगर earthworm जो है वो सन की हीट में रहेगा तो उसकी स्किन ऑब्वियसली ड्राई आउट हो जाएगी एंड देन एनिमल इज सफोकेटेड. रेस्पिरेशन इन फिश. Fish possess gills for exchange of gases. There are feathery structures behind the head which usually are covered by a flap called operculum. The gills are fed with blood from the heart. In the gills, oxygen passes from the water into the blood. Carbon dioxide wastes also pass out through the gills. Several aquatic creatures which look like large fishes have lungs instead of gills and have to come to surface to breathe. These animals, such as whales and porpoises, are in fact mammals. The process of breathing in grasshoppers is very slow and does not have lungs for respiration. Fish के पास gills होती हैं gases के exchange के लिए, और ये आपके feathery structures होते हैं जो head के behind होते हैं, जो आपके flap से covered होते हैं जिसे कहते हैं operculum. अब जो gills होते हैं ना, ये आपके fed होते हैं blood from the heart. Okay? तो गिल्स में ऑक्सीजन जो है वो वाटर से पास करती है ब्लड में. कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका वेस्ट है वो भी पास होता है गिल्स के थ्रू. तो बहुत सारे एक्वेटिक क्रीचर्स हैं जो बड़ी बड़ी फिश की तरह दिखते हैं, उनके पास एक्चुअल में लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते हैं. तो ये क्या करते हैं, जैसे वेल्स एंड पोर्पोइस की बात करें, ये आपके मैमल्स हैं और इनको सांस लेने के लिए क्या करते हैं, ये सरफेस पे आते रहते हैं, राइट. और जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का ग्रास होपर में बहुत ही स्लो होता है क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के, इंस्टेड उसके पास स्पाइरकल्स होते हैं. रेस्पिरेशन इन टेडपोल्स. Tadpoles possess gills for respiration. In an adult frog, exchange of gases takes place through the skin, buccal cavity and lungs. Tadpoles के पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और एडल्ट फ्रॉग के पास जैसे जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का स्किन के थ्रू होता है, बकल कैविटी और लंग्स के थ्रू. Respiration in grasshopper. Grasshoppers breathe through tiny holes on their body called spiracles. Oxygen enters the spiracles and reaches all parts of the body through a network of thin air tubes called trachea. The trachea branch into tracheoles which reach each and every cell of the body. Carbon dioxide produced during respiration is released out of the body through the same network of trachea and tracheoles. ग्रासहोपर्स की बॉडी में ना टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पाइरिकल्स. ये उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं. ऑक्सीजन जो है स्पाइरिकल के थ्रू एंटर करती है और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचती है. इसमें एक नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स होता है जिसे कहते हैं ट्रैकिया. और फिर उसके बाद जो ट्रैकिया है वो ट्रैक्यूल्स में आपका ब्रांच आउट हो जाता है जो आपके हर सेल तक पहुँचता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान फिर वो बॉडी से रिलीज होता है. सेम नेटवर्क है ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स का. 7.6 रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. Organisms combine oxygen with the products of digestion to produce energy. The energy is used to perform all the work of the organisms. The process by which living things take in oxygen and use it to produce energy is called respiration. Organism देखिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं किसके साथ, डाइजेशन के प्रोडक्ट के साथ, टू प्रोड्यूस एनर्जी. फिर एनर्जी को यूज़ किया जाता है. ओके तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन लेते हैं उसको यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. The waste gas carbon dioxide is also produced during respiration. Hence, the job of getting oxygen into the body and removing carbon dioxide and water vapor is the main task of the respiratory system. तो आपका जो वेस्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है. तो जो जॉब है ना ऑक्सीजन लेने का इनटू द बॉडी और जो रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वो मेन टास्क होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. This happens automatically when you breathe. You have read how oxygen is carried by the blood to the body cells. In the cells, this oxygen is combined with food to produce energy that the body can use. This is in brief
the drill of respiration in humans. The detailed description of respiration human is given as follows. तो देखिए जब ये ऑटोमेटिकली होता है ना, जब हम ब्रीथ करते हैं तो किस तरह से, देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है ब्लड तो बॉडी सेल्स, फिर सेल्स में ये ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो बॉडी यूज़ करती है. तो चलिए अब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं. नंबर 1, द नोज एंड थ्रोट. You take in air through the nostrils or openings of the nose. If the air is cold, as it may be in winter, it is quickly heated by warm blood that passes through blood vessels near the inner lining of the nose. At the same time, mucus in the nose moisten the air. Finally, both large and tiny hair in the nose help to clean the air in your nose by trapping dust particles and microscopic organisms like bacteria. Now, the moist clean air moves into your throat and from there through the windpipe goes deeper into respiratory system. तो देखिए सबसे पहले हमारे जो nostrils होते हैं उनके थ्रू हम एयर को लेते हैं, है ना. nostrils are the openings of the nose. अगर एयर कोल्ड है जैसे कि विंटर में होता है तो क्विकली हीट अप हो जाती है बाय वार्म ब्लड एंड देन वो आपके ब्लड वेसल्स में जाती है नोज के इनर लाइनिंग में. ओके, और सेम टाइम पे आपके नोज में म्यूकस होता है जो एयर को मॉइस्चन करता है. फिर फाइनली जो दोनों लार्ज और टाइनी हेयर होते हैं ना, कि नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एयर को क्लीन करते हैं. मतलब जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उसको ट्रैप कर लेते हैं. अब ये मॉइस्ट क्लीन एयर जो है वो आपके थ्रोट से मूव करती है थ्रू द विंड पाइप, फिर वो डीपर जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. नंबर 2, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. As you breathe, air passes down the throat into the trachea. Soon the air reaches a place where the trachea branches into 2 tubes. Each of these tubes is called the bronchus. Each bronchus further branches into smaller and smaller tubes. The thinnest branches lead to grape-like cluster of tiny balloons called alveoli. The alveoli make up most of the tissue of the lungs, the main organs of respiration. Each thin-walled alveolus is surrounded by a network of capillaries. It is here that the blood picks up its cargo of oxygen from the air. Oxygen from the alveoli passes into the blood flowing in the capillaries. Meanwhile, the waste gas carbon dioxide passes from the blood into the alveoli and within seconds you breathe out this waste gas. अब देखिए आपने नोज से ब्रीद इन किया, जैसे हम ब्रीद इन करते हैं तो एयर जो है थ्रोट से पास होकर ट्रैकिया में जाती है, और जैसे ये ट्रैकिया में जाती है यहाँ पे ना ब्रांच हो जाती है 2 ट्यूब्स में, जैसे कहते हैं ब्रोंकस. फिर ब्रोंकस फर्दर आपके ब्रांच हो रखे हैं छोटे छोटे ट्यूब्स में. तो जो थिनेस्ट ब्रांच जो लीड करती है ना वो ग्रेप लाइक क्लस्टर होता है आपके छोटी छोटी बलून्स का, जिसे हम कहते हैं एल्वियोली. एल्वियोली क्या करता है, जो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज है लंग्स के उनको बनाता है. ओके, जो मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का. फिर हर थिन वॉल जो एल्वियोलिस की है वो सराउंडेड है एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से. यहाँ पे जो है ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को पिक करता है एयर से. फिर ऑक्सीजन जो एल्वियोली से पास हो जाती है इनटू द ब्लड जो आपकी कैपिलरीज में फ्लो कर रही है, और जो वेस्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड से पास होके जाती है एल्वियोली में विद इन सेकेंड्स, और फिर हम उसको ब्रीद आउट करते हैं. 7.7 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. Look down at your chest as you breathe in and out. What do you see? As you take in a breath, your chest expands. As you let the air out, your chest becomes smaller. Why? Let's discuss. When you're about to take a breath, the muscles attached to your ribs contract and pull upward and outward. At the bottom of your chest, another muscle called the diaphragm also contracts and pulls down the bottom of your chest. Both these actions make the chest expand. Suddenly, there is more space in it. This causes a very interesting thing to happen. The air pressure in your lungs goes down. As a matter of fact, the pressure in your lungs instantly becomes lower than the pressure of the air around you. This difference in pressure forces the air to rush into your lungs. So your chest must expand before you breathe in or inhale. अच्छा देखिए मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का. जैसे कि आप सांस लेने वाले होते हैं, ब्रीथ करने वाले होते हैं, तो मसल्स जो हमारे रिब्स के साथ अटैच होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अपवर्ड पुल होती है और आउटवर्ड. तो जो हमारी बॉटम ऑफ चेस्ट में एक दूसरा मसल होता है जिसे कहते हैं हम डायफ्राम. सी दिस इज डायफ्राम. ओके, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती है. फिर ये क्या करता है, जो चेस्ट का बॉटम पार्ट है उसको पुल डाउन करते हैं.
तो ये जो एक्शंस होते हैं ना, इनकी वजह से चेस्ट एक्सपेंड होती है, फिर सडनली बहुत सारा स्पेस हो जाता है। इसकी वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो एयर प्रेशर होता है हमारे लंग्स का, इट गोज़ डाउन। और जो प्रेशर हमारे लंग्स में होता है ना, इंस्टेंटली वो लोअर हो जाता है देन द प्रेशर ऑफ द एयर जो हमारे अराउंड है। और इस डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर है, डिफरेंस जो आता है प्रेशर में, वो क्या करता है, एयर को फोर्स करता है टू रश इनटू आवर लंग्स। तो इसीलिए हमारी चेस्ट जो है इट मस्ट एक्सपेंड, मतलब इनहेल करने से पहले या ब्रीद इन करने से पहले इसको एक्सपेंड होना होता है। The reverse happens when you breathe out or exhale. Your chest muscles relax. The space in your chest becomes lesser. The air pressure becomes greater inside than outside. As a result, air rushes out of your lungs at it would out of a squeezed balloon. अच्छा, और जब हम एक्सेल करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं तो जस्ट इसका रिवर्स होता है। हमारी जो चेस्ट मसल्स होती हैं रिलैक्स हो जाती हैं। अब जो स्पेस पहले बहुत ज़्यादा था चेस्ट में, अब वो लेस हो जाता है। अब एयर प्रेशर जो है वो इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली आउटसाइड, जिसकी वजह से एयर जो है हमारे लंग से रश आउट करेगी। ओके, एक्टिविटी 4, व्हाट इज एक्सेल्ड एयर? In the presence of carbon dioxide, bromethymol blue solution turns green or yellow. Fill 2 test tubes with 10 ml of water and a few drops of bromethymol blue solution. Label the tubes as A and B. Using a drinking straw, gently blow air into the liquid in test tube A. Compare the test tube. What happened to the test tube? Explain what was the purpose of the test tube B. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ना, ये जो आपका सोल्यूशन है ब्रोमथाइमोल ब्लू सोल्यूशन, ये आपका ग्रीन या येलो हो जाता है। तो आपको करना क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब फिल करनी है, दोनों में 10 ml वाटर डालना है और कुछ ड्रॉप्स डालनी है ब्रोमथाइमोल ब्लू सोल्यूशन की। अब उनको लेबल करना है ए या बी। फिर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से आपने एयर को जेंटली ब्लो करना है टेस्ट ट्यूब ए में। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब्स को आपने कंपेयर करना है और जो भी ऑब्जर्वेशंस होगी आपने उन्हें लिखना है, नोट डाउन करना है। एक्टिविटी 5, मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एक्सेल्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें जो एक्सेल हमने की है एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वॉल्यूम मेजर करना है। पर्पस इन दिस एक्टिविटी यू विल मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर यू नॉर्मली एक्सेल। ओके, मटीरियल्स पर ग्रुप: 2 liter plastic bottle, water, red food coloring, 2 hole rubber stopper fitted with 10 and 20 centimeter long pieces of glass tubing, 35 centimeter long rubber tubing, 25 centimeter long rubber tubing, 250 ml graduated cylinder। तो आपको इन सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस एक्टिविटी में हमने मेजर करना है कि हम जनरली जो एक्सेल करते हैं एयर, उसका वॉल्यूम कितना है। प्रोसीजर: fill a 2 liter plastic bottle about 4/5 full of water. Add several drops of red food coloring to the water. Cover the bottle snugly with the 2 hole rubber stopper that has been fitted with glass tubing. Be sure that the lower end of the longer glass tubing extends well below the surface of the water. Also, make sure that the end of the shorter length of the tube does not extend into the water. Using a gentle twisting motion, carefully insert the longer length of glass tubing into the longer length of rubber tubing and place the free end of the longer length of the rubber tubing in a large, empty graduated cylinder. Repeat for the shorter lengths of glass and rubber tubing. After inhaling normally, exhale normally into the shorter length of rubber tubing. The exhaled air will cause an equal volume of water to be displaced through the other length of tubing into the cylinder. Record the volume of this displaced water in ml. Repeat this procedure 2 more times carefully and observe. आपने देखिए क्या करना है, 2 लीटर जो प्लास्टिक की बॉटल है उसमें 4/5 आपने वाटर भरना है। उसमें बहुत सारी ड्रॉप्स आपने डालनी है रेड फूड कलरिंग की वाटर में। फिर बॉटल को आपने कवर करना है 2 होल रबर स्टॉपर के साथ, जो कि आपके फिटेड होंगे ग्लास ट्यूबिंग के साथ। तो अपने देखने मेक श्योर करना है कि जो लोअर एंड है लॉन्गर ग्लास ट्यूबिंग का, वो एक्सटेंड हो जाए अच्छे से वाटर के सरफेस के नीचे। एंड आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो एंड है ना शॉर्टर लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूबिंग का, वो एक्सटेंड ना हो वाटर में। फिर आपने एक जेंटल ट्विस्टिंग मोशन की हेल्प से यूज़ करते हुए केयरफुली आपने जो लॉन्गर लेंथ है ग्लास ट्यूबिंग की, उसको इंसर्ट करना है रबर की किसमें लॉन्गर लेंथ ऑफ रबर ट्यूबिंग की, और उसको प्लेस करना है जो फ्री एंड है लॉन्गर लेंथ का रबर ट्यूबिंग का एक लार्ज एम्प्टी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में।
ओके, रिपीट आपने करना है शॉर्टर लेंथ ऑफ ग्लास के साथ एंड रबर ट्यूबिंग के साथ। फिर इनहेल करने के बाद नॉर्मली, एक्सेल करना है नॉर्मली शॉर्टर लेंथ ऑफ रबर ट्यूबिंग में। तो जो एक्सेल्ड एयर होगी वो क्या करेगा, जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना वो डिस्प्लेस हो जाएगा थ्रू द अदर लेंथ ऑफ ट्यूबिंग इनटू द सिलेंडर। आपने इसके बाद जो आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना उसका वॉल्यूम को रिकॉर्ड करना है मिलीलीटर में। इस प्रोसीजर को आपने रिपीट करना है 2 और ज़्यादा टाइम केयरफुली, और फिर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। Calculate the average of 3 readings you obtained by adding the numbers together and dividing the total by 3. This is the average volume of air you exhale per breath. अच्छा, आपने क्या करना है, आपने एवरेज निकालना है 3 रीडिंग्स का। तीनों जो भी आपकी रीडिंग्स आई हैं तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज वॉल्यूम आ जाएगा एयर का जो आपने एक्सेल किया पर ब्रीथ। Count the number of breaths you normally take in 1 minute. Calculate the average volume of air you exhale per minute by multiplying the number of breaths you take per minute by the average volume of air you exhale per breath. अब आपने क्या करना, नंबर ऑफ ब्रीथ्स आपने काउंट करना जो नॉर्मली आप लेते हैं, टेक इन करते हैं 1 मिनट में। फिर आपने कैलकुलेट करना है एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप एक्सेल करते हैं पर मिनट। कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ब्रीथ्स को जो आपने पर मिनट लिए बाय द एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपने एक्सेल किया पर ब्रीथ। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। चलिए डिफरेंस देखते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड। Breathing, no energy released during this process. Respiration, energy is released during this process. Breathing, it takes place outside the cell. Respiration, it takes place within the cells. देखिए, this difference is very important. Breathing and respiration. Breathing आपका एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन टेक इन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, दैट्स इट, दिस इज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन आपका एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें आपका फूड का ब्रेकडाउन होता है। जब ब्रीदिंग होती है तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग आपके सेल के आउटसाइड होती है जबकि रेस्पिरेशन आपके विद इन द सेल होता है। की पॉइंट्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू obtain एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। The process of getting oxygen into the body and using it for releasing energy by burning food and removing carbon dioxide and water from the body is called respiration. Respiration is essential for life because it provides energy for carrying out all the life processes. Respiration takes place in the presence of oxygen, which is known as aerobic respiration. Respiration may also take place in the absence of oxygen, which is known as anaerobic respiration. Most plants respire by the process of diffusion. Different animals have different mechanism for exchange of gases. Grasshoppers breathe through tiny holes on the body called spiracles. Human beings have lungs and their breathing organs. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।